السلام علیکم ویورز، میں ہوں حمید خٹک، اور آج ایک نئے اور بڑے خوبصورت ویلاگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہو رہا ہوں۔ یہ ویلاگ ایک محبت کی لازوال داستان ہے، محبت کی ایک لازوال داستان ہے۔ بہادری، جرت، دلیری، طاقت، تلاش، ذہانت کی ایک ایسی مثال جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ویورز، یہ ایک بہت عظیم ہستی گزری ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے، دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے ایک قابل فخر ہستی گزری ہے، اور اس کا ایک کارنامہ اتنا بڑا اور اتنا عظیم اور اتنا روشن کارنامہ ہے کہ رہتے دنیا تک مسلمان اس پر فخر کرتے رہیں گے، مسلمانوں کا لہو گرم ہوتا رہے گا، مسلمان اس کا نام سنیں گے تو مسلمان کے دل میں اس کے لیے عزت، احترام، قدر و منزلت ضرور پیدا ہوا کرے گی، اور وہ چاہے گا کہ کاش میں یا میرے اولاد میں سے بھی کوئی ایسا بن جائے۔ یہ عظیم، بہادر، جری، طاقتور، ذہین کون تھے؟ یہ نور الدین زنگی ہے۔ نور الدین زنگی، نور الدین زنگی جس کو عام طور پر نور الدین کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، یہ ترکی کے اوغوز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ سلجوق حکومت کے دوران وہ سیریا کے بادشاہ تھے، سیریا یعنی شام کے بادشاہ تھے۔ یہ 11 فروری 1118 کو عراق کے علاقے موصل میں پیدا ہوئے تھے۔ 15 مئی 1174 کو شام کے علاقے دمشق میں اس کا انتقال ہو گیا۔ پورا نام تھا نور الدین ابو القاسم محمود ابن عماد الدین زنگی، اور اس کو نور الدین مدرسہ میں دفن کیا گیا۔ نور الدین مدرسہ خود نور الدین زنگی نے تعمیر کرایا تھا، اس کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا الصالح اسماعیل المالک۔ دوستو، یہ ایک سکول ہے، بچوں کا سکول ہے۔ ایک ٹیچر کلاس پڑھا کے کلاس سے باہر نکلتا ہے تو اس کی جگہ پڑھانے کے لیے دوسرا ٹیچر کلاس میں داخل ہوتا ہے۔ ٹیچر تھکا ہوا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کیا کرتا ہے، کامیابی کے موضوع کے اوپر بچوں کے ساتھ بات چیت کرتا ہے اور بچوں کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ کامیابی کیا ہے، کیسے ہم نے کامیاب ہونا ہے، آپ لوگوں نے کیا مقاصد رکھے ہیں، کیا بن کے آپ لوگ کامیاب بننا چاہتے ہیں۔ تو ٹیچر جیسے کلاس میں داخل ہوتا ہے، وہ بچوں سے پوچھنے لگتا ہے۔ ایک بچے سے پوچھتا ہے، ہاں بیٹا کیا بنو گے؟ دوسرے سے پوچھتا ہے، آپ کا کیا ارادہ ہے، کیا بننا ہے؟ تیسرے سے یہی سوال کرتا ہے، بڑے ہو کر کیا بننا ہے، پڑھو گے لکھو گے اس کے بعد کیا بنو گے، کیا ارادے ہیں؟ چوتھے سٹوڈنٹ سے پوچھتا ہے، سب طلباء سے پوچھتا ہے، اور سب طلباء کے جوابات کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں۔ کوئی سٹوڈنٹ کہتا ہے کہ میں تو ڈاکٹر بنوں گا بڑا ہو کے، کوئی کہتا ہے میں انجینئر بنوں گا، کوئی کہتا ہے میں پولیس افیسر بنوں گا، کوئی کہتا ہے میں فوجی افیسر بنوں گا، کوئی کہتا ہے میں وکیل بنوں گا، کوئی کہتا ہے میں بزنس مین بنوں گا۔ تو ایسے لیکچر کے بعد ٹیچر کہتا ہے، یہ میرے معمول کا سوال تھا اور بچوں کے معمول کے جواب تھے، جن کو سننا کانوں کو بھلا اور دل کو خوشگوار لگتا تھا، لیکن ایک جواب آج بھی دوبارہ سننے کو نہ ملا۔ کان تو اس کو سننے کے متلاشی تھے، مگر روح بھی بے چین تھی۔ انک لگائے بیٹا خاموش گمسم بچہ، جس کو میں نے بلند آواز سے پکار کر اس کی سوچوں کا تسلسل توڑا۔ ہیلو، ارے میرے شہزادے، آپ نے کیا بننا ہے؟ آپ بھی بتا دو، کیا آپ سر تبسم سے ناراض ہیں؟ بچہ آہستہ سے کھڑا ہوا اور کہا، سر میں نور الدین زنگی بنوں گا۔ میری حیرت کے امتحان آ رہی، اور کلاس کے دیگر جو باقی بچے تھے وہ ہنسنے لگے۔ یعنی بچوں کو لگا یہ اس کا کس طرح کا مقصد ہے۔
क्योंकि उनके यहाँ कामयाबी या बड़ापन ये था कि डॉक्टर बन जाओ, वकील बन जाओ, बिजनेसमैन बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, पुलिस ऑफिसर बन जाओ, फौजी बन जाओ। ये उनके यहाँ कामयाबी का पैमाना था, उनको यही सिखाया गया था। उस्ताद चूंकि समझदार था तो बाकी बच्चे हंसने लगे। उस्ताद क्या कहता है, उसकी आवाज गोया मेरा कलीजा चीर चीर गई हो, रूह में इर्तिआश पैदा कर दिया। फिर पूछा, बेटा आप क्या बनोगे? बच्चे ने फिर जवाब दिया, मैं नूरुद्दीन जंगी बादशाह बनूंगा। इधर इसका जवाब देना था, इधर मेरी रूह बेचैन हो गई, जैसे इसी जज्बे की, इसी आवाज की तलाश में इस शुबह तदरीस को अपनाया हो। बेटा अब टीचर पूछता है, बेटा अब डॉक्टर, फौजी या इंजीनियर क्यों नहीं बनोगे? आगे से बच्चा क्या कहता है, मेरी अम्मी ने बताया है कि अगर मैं नूरुद्दीन जंगी बनूंगा तो मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होगा। बच्चा क्या कहता है, मेरी माँ ने मुझे बताया है कि अगर मैं नूरुद्दीन जंगी बनूंगा तो मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब होगा। जो लोग डेनमार्क में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, उनको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके साथ साथ इस बच्ची की आवाज बुलंद और लहजे में सख्ती आ रही थी। उसकी बातें सुनकर मेरा जिस्म पसीना में शरबोर हो गया। इधर क्लास के अख्तिताम की घंटी बजी और मैं रोता हुआ बाहर आया। मुझे इस बात का एहसास है कि आज माओ ने नूरुद्दीन जंगी पैदा करने छोड़ दिए हैं और असातिज़ा ने नूरुद्दीन जंगी बनाना छोड़ दिए हैं। ये दो बातें व्यूअर्स अच्छे तरीके से जहन में बिठा दो। माओ ने नूरुद्दीन जंगी पैदा करना छोड़ दिए हैं और असातिज़ा ने नूरुद्दीन जंगी बनाना छोड़ दिए हैं। मैं उस दिन से आज तदम तहरीर अपने तलबा में फिर से वो नूरुद्दीन जंगी तलाश कर रहा हूँ। क्या आप जानते हैं वो कौन है? उस माँ ने अपने बेटे को किस नूरुद्दीन जंगी का तारफ करवाया होगा? ये वाकया पढ़िए और अपने बच्चों में से एक अदद नूरुद्दीन जंगी कौम को दीजिए। नूरुद्दीन जंगी का दिलचस्प, खूबसूरत, बहादुरी, शुजात, दलेरी, जहानत, मुशक्कत भरा वाकया पढ़ लीजिए और पक्का इरादा कीजिए कि अपने बच्चों में से कम मैं अपने कौम को एक नूरुद्दीन जंगी दिया करूंगा। एक रात सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैहि इशा की नमाज पढ़कर सोए के अचानक उठ बैठे। सोए के अचानक उठ बैठे और नम आंखों से फरमाया, मेरे होते हुए मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सता रहा है? अब इस ख्वाब के बारे में सोच रहे थे जो मुसलसल 3 दिन से उन्हें आ रहा था, और फिर चंद लम्हों पहले उन्हें आया, जिसमें सरकार दो आलम ने दो अफराद की तरफ इशारा करके फरमाया कि ये मुझे सता रहे हैं। अब सुल्तान को फरार कहाँ था, सुल्तान को करार कहाँ था? उन्होंने चंद साथी और सिपाही लेकर दमश्क से मदीना जाने का इरादा फरमाया। इस वक्त दमश्क से मदीना का रास्ता 20 से 25 दिन का था। 20 से 25 दिन का रास्ता था, मगर आपने बगैर आराम किए ये रास्ता 16 दिन में तय किया। मदीना पहुंचकर आपने मदीना आने और जाने के तमाम रास्ते बंद करवा दिए और तमाम तमाम खास व आम को अपने साथ खाने पर बुलाया। अब लोग आ रहे थे और जा रहे थे, आप हर चेहरा देखते मगर आपको वो चेहरे नजर ना आए। अब सुल्तान को फिक्र लाहक हुई और आपने मदीने के हाकिम से फरमाया, क्या क्या कोई ऐसा है जो इस दावत में शरीक ना हुआ हो? क्या कोई ऐसा रह गया है जो इस दावत में
शरीक ना हुआ हो। जवाब मिला, मदीने में रहने वालों में से तो कोई नहीं, मगर दो मगरिबी ज़ायर हैं जो रोज़ा रसूल के करीब एक मकान में रहते हैं। तमाम दिन इबादत करते हैं और शाम को जन्नतुल बकी में लोगों को पानी पिलाते हैं, जो अरसा दराज से मदीना में मुकीम है। सुल्तान ने उनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। दोनों ज़ायर बज़ाहिर बहुत इबादत गुजार लगते थे। इनके घर में ताही किया, एक चटाई और दो चार जरूरत की अशिया कि यकदम सुल्तान को चटाई के नीचे का फर्श लरसता हुआ महसूस हुआ। आपने चटाई हटा के देखा तो वहां एक सुरंग थी। आपने अपने सिपाही को सुरंग में उतरने का हुक्म दिया। वो सुरंग में दाखिल हुए और वापस आकर बताया कि ये सुरंग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की तरफ जाती है। ये सुनकर सुल्तान के चेहरे पर गैज़ व गजब की कैफियत तारी हो गई। आपने दोनों ज़ायरीन से पूछा कि सच बताओ कि तुम कौन हो। हीलो हुज्जत के बाद उन्होंने बताया कि वो यहूदी हैं और अपनी कौम की तरफ से तुम्हारे पैगंबर के जिस्म अक़दस को चोरी करने पर मामूर किए गए हैं। सुल्तान ये सुनकर रोने लगे। उसी वक्त उन दोनों की गर्दनें उड़ा दी गईं। सुल्तान रोते जाते और फरमाते जाते, मेरा नसीब कि पूरी दुनिया में से इस खिदमत के लिए इस गुलाम को चुना गया। मेरा नसीब कि पूरी दुनिया में इस काम के लिए मेरे जैसे गुलाम को चुना गया। इस नापाक साजिश के बाद जरूरी था कि ऐसी तमाम साजिशों का हमेशा के लिए खात्मा किया जाए। सुल्तान ने मेमार बुलाए और कब्र अक़दस के चारों तरफ खंदक खोदने का हुक्म दिया, यहाँ तक कि पानी निकल आए। सुल्तान के हुक्म से इस खंदक में पिघला हुआ सीसा भर दिया गया। पास के नजदीक सुल्तान को सुरंग में दाखिल होकर कब्र अनवर पर हाजिर होकर कदमैन शरीफेन को चूमने की सआदत भी नसीब हुई। बस व्यूअर्स, ये हमारे अकबरीन हैं जो मजहब से इतना गहरा लगाव रखते थे। नबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तभी तो उसी को ख्वाब में आते हैं कि ये दो बंदे हैं मुझे सता रहे हैं। 3 रातों तक ये ख्वाब देखते रहे। तीसरी रात ख्वाब को देखा, सिपाहियों को लेकर सीधा मदीना मुनव्वरा के लिए निकला। 20-25 दिन का सफर 16 दिन में तय किया, आराम भी नहीं किया। जब तक उन दो बंदों को पहचाना मालूम नहीं किया, उनको किफर किरदार तक नहीं पहुंचाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मज़ार है उसको मजबूत और महफूज ना बनाया, तब तक चैन से नहीं बैठा। और ये इतना दिलगुदाज और इतना बहादुरी वाला, इतनी शुजात वाला, इतनी जहानत वाला वाकया है कि बिलाशुबा हमेशा के लिए मुसलमान इस पर फख्र भी कर सकते हैं और इससे हौसला भी ले सकते हैं कि मुसलमान असल में एक किरदार का नाम है, एक अमल का नाम है। जो मुसलमान खुद को कहता है वो किरदार से पहचाना जाता है, अमल से पहचाना जाता है, और वो फिर आशिक रसूल होता है और अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी करने वाला होता है। अल्लाह ताला हम सबको, हमारी नस्लों को सच्चे आशिक रसूल बना दे और अल्लाह ताला से प्यार करने वाला बना दे। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह दोबारा खूबसूरत कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।